everyone, and welcome to Vedantu. I know your board exams have already started, and in the previous video we discussed, I told you what mistakes you should definitely avoid, one night before the examination. You can find the link for that video in the description, right? In this particular video, we are going to talk about what mistakes you should definitely avoid during the examination, right? Some of you requested this video in the comments previously, so we are doing it. Again, sorry for the delay, but we are hoping that we have covered all the mistakes that students can ever make in this particular case, right? So let's go through them one by one, everyone, right? So the first mistake that the students generally make is, for every board exam, there is always a 15 minutes of reading time, right? Now that 15 minutes of reading time is extremely important, right? It's very important to strategize how exactly you're going to attempt your paper. One, go through the entire paper, read each of the questions very carefully, figure out, get the feel of the paper, whether it is, something that is doable for you, something you find it difficult, easy or whatever. Classify the questions into three categories. One, you know the answers right away. Two, you will need to think about the answer, but you will probably get it by, if you spend some time. Three, you don't know the answers to those questions at all. Mark those questions right there in the question paper. Right? So this particular part has to be accomplished in those 15 minutes. And lastly, make sure you set timelines for yourself that, the paper is starting at 9 a.m. So I should be able to finish off this much of the paper by 10 a.m., this much of the paper by 11 a.m. and so on and so forth. Right? All this planning in the first 15 minutes. That is why you're getting these 15 minutes. When they say reading time, it's not just about reading the paper, it's about all of these things. Right? So you should be able to read the entire paper in about 5 minutes, 6 minutes, and then categorize the questions, and after that make a strategy for yourself. Right? So that is mistake number one, not utilizing first 15 minutes. Pehle 15 minutes definitely utilize karna hai in reading the questions, categorizing the questions, usko 3 category mein divide karo. Right? And lastly, figuring out a strategy for yourself, figuring out किस order में आप उस question को attempt करने वाले हैं. Right? So mistake number one. Let's move on to mistake number two. Mistake number two is, again, this, not sorting out questions according to difficulty. So ये भी आपको उसी 15 मिनट में करके accomplish कर देना है, right? Don't just read, sort questions on the basis of difficulty. How are you going to attempt these questions, right? Now coming to the third part. Now this is where a lot of people make mistakes. So आपने पहली बार सारे सवाल पढ़ लिए, उनको कैटेगराइज भी कर लिया. Now while attempting the question, you are in a lot of hurry. Generally everyone is in a hurry because for us time is very important. समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे. So इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार हम क्वेश्चन के शुरू के 3-4 वर्ड पढ़ते हैं, बाद के 3-4 वर्ड पढ़ते हैं और बीच का खुद से अज्यूम कर लेते हैं. Right? We do not read the question properly, and that is the biggest mistake that you can make. कई बार वो जो क्वेश्चन आपने जो शुरू के 3-4 वर्ड पढ़ के जो आपने अज्यूम कर लिया क्वेश्चन है, एक्चुअली पेपर में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. बहुत बेसिक एग्जांपल जो लेता हूं मैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. मे बी आपने क्वेश्चन जो है पढ़ा, आपको जो रियलाइज हुआ कि डिस्टेंस निकालना है, बट एक्चुअली डिस्टेंस नहीं निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था. समथिंग एज सिंपल एज दैट. Right? But these very silly mistakes is what happens if you do not read the questions properly. Right? So don't make that mistake. Read the question 2 times, 3 times, 4 times before actually attempting it. सवाल क्या पूछ रहा है? In fact, सवाल क्या पूछ रहा है? Are there subparts to that question? So ये सारी चीजें सवाल 2-3 बार पढ़ के समझ लो, उसके बाद attempt करना start करो. Right? Now, next part, question number गलत लिखते हैं हम कई बार गलत क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं. सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं बाद में करूंगा, बट यू फॉरगेट टू राइट 5 इन द क्वेश्चन इन योर आंसर शीट, यू राइट 4 इटसेल्फ. राइट? दैट इज अ मिस्टेक. बाद में आपको खुद को कंफ्यूजन हो सकता है, बाद में टीचर को जो है कंफ्यूजन हो सकता है. शी और ही माइट गिव यू रॉन्ग मार्क्स बिकॉज दैट आंसर इज अलाइंड विद द रॉन्ग क्वेश्चन नंबर. राइट? अ लॉट कैन गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल वेरी सिली मिस्टेक. Incorrect question number. Cross check question number every time. Very important. Right? अगले वाले में बढ़ते हैं. Now यहाँ पे illegible handwriting और scribbling जब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको आर्टिस्ट की तरह cursive writing में बहुत beautiful सी handwriting में लिखना है. नहीं. You have to make sure that you write in such a way कि जो भी आपने लिखा है वो clearly visible है. अगर वो clearly visible नहीं है, काटो, दोबारा लिख दो. Right? But over writing मत करो, या खराब हैंड राइटिंग में या चिपका के मत लिखो.
राइट। अगेन अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना इज प्रेफर्ड, इट्स डिजायरेबल, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो, बट दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट हियर। द रिक्वायरमेंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर और लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना है। सामने वाला जब उसे खोल के देखे तो उसे समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हो, राइट, एंड आपको वो उसी हिसाब से मार्क्स दे पाए, राइट। सो इलेजिबल या स्क्रिबलिंग, ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं करनी, बहुत सारी काटा पीटी ये सब नहीं करना है। पेपर की वहां कोई कमी नहीं है, दैट इज वन प्लेस वेयर यू हैव टू इंश्योर दैट यू यूज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेपर। बाकी टाइम में हमेशा बोलूंगा पेपर कंजर्व करो, बट एग्जाम में यूज एज मच एक्स्ट्रा शीट्स एज यू नीड, बट मेक श्योर एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द आंसर्स। अब यहां पे ये भी एक मिस्टेक हम काफी ज्यादा करते हैं और इसकी वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है, राइट। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज, अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो मेक श्योर कि आप उसी हिसाब से कुछ 20 to 25 वर्ड्स ही लिख रहे हो आप उस क्वेश्चन के लिए, नॉट 50 वर्ड्स का ऐसे, ऑल्सो नॉट 1 वर्ड आंसर, अगर वो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो। सिमिलरली अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है बट उसके 5 इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, ईच ऑफ देम आर ऑफ 1 मार्क्स, ट्रीट ईच ऑफ देम एज अ 1 मार्क क्वेश्चन और उसको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करो। वहां भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो लेंथ ऑफ द आंसर शुड बी वेरी प्रोपोर्शनल टू कितने मार्क्स का वो सवाल या वो पार्ट ऑफ सवाल है, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, टाइम मैनेजमेंट। अब यहां पे क्या है, ये अगेन इट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस वन, ये चीज भी आपको वो रीडिंग टाइम में ही करनी है। यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग द राइट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, जो भी सीक्वेंस आपने उस टाइम डिसाइड किया टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कि ये सारे के सारे जो इजी वाले क्वेश्चंस मैंने कैटेगराइज किए थे, ये मैं पहले 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, राइट। उसके बाद जो सोचने वाले सवाल हैं मैं उसमें और 1 घंटा लगाऊंगा, राइट। उसके बाद में अपने सारे के सारे आंसर्स रिवाइज करके पक्का कर लूंगा कि ये सब तो मेरी तरफ से डन है, एंड उसके बाद जो बाकी के 30-40 मिनट बचे होंगे उसमें मैं बैठ के जो 1-2 सवाल एकदम ही मेरे से नहीं होने वाले उनको मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि उतने मार्क्स तो मेरे पक्के हो गए हैं, वो तो मेरे पास आने ही वाले हैं। ये जो सवाल है ये मैं ट्राई कर लेता हूं, हो सकता है 1-2 स्टेप मार्किंग मिल जाए मुझे, या हो सकता है 1 आधा सवाल क्रैक ही हो जाए, नहीं पता हमें। सो दिस इज द सीक्वेंस इन विच यू शुड मैनेज योर टाइम। और ये जो सीक्वेंस मैंने बताया इसके साथ टाइम बहुत जरूरी है। पहला सेट इजी सवाल 1 घंटे के अंदर अगर नहीं हुआ प्रॉब्लम, सो आपको करना चाहिए, राइट। दूसरा सेट अगेन अगर आपने उसके लिए जो भी टाइम लगाया हुआ है 50 मिनट 1 घंटा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो होना चाहिए। सो द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस मैप्ड विद द टाइम, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट मिस्टेक। मूविंग ऑन, यस, अब ये तो काफी कॉमन मिस्टेक है, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है, एंड इसमें क्या होता है हम वैल्यू गलत ले लेते हैं, और ये तो 12th में तो काफी ज्यादा होता है, 10th में आई एम नॉट श्योर। 10th में आपके मैथ्स एंड फिजिक्स में इसके काफी चांसेस हैं। होता क्या है कि हमने सवाल काफी जल्दी पढ़ लिया, राइट, हमें सवाल एकदम समझ में आ गया और हम बहुत खुश हैं कि ये सवाल तो मुझे एकदम आता है, इसके तो फुल मार्क्स मेरे को मिल ही जाएंगे। लेकिन इस हड़बड़ी में, इस जल्दीबाजी में, राइट, इन दिस एक्स्ट्रा basically extra desperate situation where we are so excited, right, we end up copying the wrong data, right, from the question. That's mistake number 1. Mistake number 2 is in your hurry probably you write in one of the steps, you write instead of 16 you wrote it in such a way that it looks like 10, and when you copy that same data in the next step, वहां फिर से आप उसको 10 लिखना स्टार्ट कर देते हैं, and you are very confident कि यार ये तो मुझे आता था, इसमें कुछ गलती नहीं हो सकती। So ये 2 जगह, right, सवाल से वैल्यू कॉपी करना इन योर सोल्यूशन 1, दूसरा विद इन द सोल्यूशन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब आप जा रहे हैं तो ये वाला सिली मिस्टेक, ये दोनों आपको अवॉइड करना है। और एक ही तरीका है इसको अवॉइड करने का, वो है बार बार रीचेक करो, बार बार रीचेक करो। एक बार आपने वैल्यू लिख लिया वो आपको आंसर शीट में, उसके बाद फिर रीचेक करो क्या ये वैल्यू सही है, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप्स करने स्टार्ट किए, हर 2-3 स्टेप्स के बाद आप रीचेक करोगे क्या ये सही है, हाँ सही है। बिकॉज बिलीव मी, ये जो आपको लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा टाइम यहां पे डाल रहे हो, दैट एक्स्ट्रा टाइम इज वर्थ इट। ये वो सवाल है जो आपको आता है, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, बट अगर किसी एक सिली मिस्टेक की वजह से वो मार्क्स आपको नहीं मिले, दैट इज द बिगेस्ट लॉस दैट यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ, राइट। सो वो एक गलती जो है वो बहुत ज्यादा खलती है, यू फील एक्सट्रीमली बैड अबाउट दैट पार्ट, सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, right? Always copy the right values from the question to the solution and from one step of the solution to the second step of the solution, right? ये सेकंड वाली गलती तो कई बार टीचर से भी हो जाती है, इतनी ज्यादा कॉमन है, and that is what you have to avoid, right? Moving on, yes. अब यहां पे क्या है, कई बार आपने जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, काफी बच्चे क्या करते हैं वो 1 2 3 4 5 6 में अटेम्प्ट कर रहे हैं,
तो उनके लिए तो काफी इजी है ट्रैक रखना कि हाँ मैंने 1 2 3 किया है, अच्छा 4th नहीं किया है, स्पेस छोड़ा हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स एंड दिस इज ऑल परफेक्टली ऑल राइट, देयर आर स्टूडेंट्स हु डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन दैट मैनर, दे आर लाइक नहीं मैं सारे इजी सवाल पहले करूंगा, सो मैं 1 5 9 8 1 5 9 इस तरीके से कुछ सीक्वेंस में करूंगा। The only problem with this scenario is you lose track of what questions you have answered and what questions you have not answered. It is very very important to keep a track of how many questions you have answered. कितने सवालों का आप जवाब दे चुके हैं and कितने सवाल अभी बाकी हैं। And you have to ensure कि जो भी सवाल आपको आते हैं उनका जवाब डेफिनेटली टाइम खत्म होने से पहले आप कर दो, राइट। सो ये एक मिस्टेक डेफिनेटली मत करना, राइट। मेक श्योर कि आपके आंसर शीट में पूरे 30 के 30 सवाल या 27 सवाल हैं। मेक श्योर कि अगर उन 27 में से आपने पहले डिसाइड किया था कि 24 सवाल आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो 24 सवाल आपके आंसर शीट में दिए हुए हैं, प्रॉपरली एलिजिबली दिए हैं। यही सारी चीजें आपके रिविजन में आती हैं, राइट। ओके, नाउ यस, this is one more mistake that we do. Generally what happens is there are questions that we are slightly confused about. हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं उन सवालों को लेके, हम सोचते हैं कि यार अभी के अभी मैं इसको अटेम्प्ट कर लेता हूं, अगर ये हो गया ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इजी वाले तो मैं बाद में कर ही दूंगा। एंड व्हाट हैपेंस इन दैट केस इज कई बार उन सारे सवालों में आप इतना टाइम स्पेंड कर देते हो कि इजी वाले सवालों के लिए टाइम बचता ही नहीं है, और जब वो टीचर पेपर खींच रहा होता है तब आप जल्दी जल्दी उसके आंसर लिखते हो। एंड डेफिनेटली अगर वहां पे अगर वो 2 नंबर का सवाल था और 2 नंबर मिलने थे आपको, अब आपको शायद 1 ही नंबर मिलेगा, 1.5 ही नंबर मिलेंगे, राइट। कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाएंगे। सो डेफिनेटली डू नॉट डू दिस। द राइट सीक्वेंस इज ऑलवेज easiest first, moving on to increasing difficulty level. हमेशा आसान से स्टार्ट करो और मुश्किल की तरफ जाओ, हमेशा, राइट। एंड लास्टली मेक श्योर, और ये तो गलती डेफिनेटली आपको नहीं करनी है, अगर आपके पास आखिरी के जो है 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं, आपके पास अभी भी कुछ सवाल बचे हैं जो आपने नहीं किया है, मेक श्योर आप उसमें से 2 4 6 मिनट निकालो और पहले जाके रिवाइज करो। वो 2 सवाल 1 सवाल करने के चक्कर में अगर आपने रिवाइज नहीं किया और वो वहां कुछ सिली मिस्टेक आपसे छूट गया एंड वहां वो आपके नंबर चले गए, वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। सो रिवीजन तो डेफिनेटली करना ही है। मेक अ हार्ड स्टॉप फॉर योरसेल्फ कि 2 घंटा 45 मिनट के बाद मैं डेफिनेटली एक बार रिवाइज करूंगा, चाहे कितने भी सवाल हुए हो, चाहे आपने 27 में से 10 सवाल किए हैं या 17 सवाल किए हैं या 25 सवाल किए हैं, आप 2 घंटा 45 मिनट होने के बाद डेफिनेटली रिवाइज करोगे। अ बेटर डील अकॉर्डिंग टू मी इज, जब आपने पहले 2 टाइप के सवाल सॉल्व कर दिए, पहला जो आसान था और दूसरा जो शायद आसान था, आपको थोड़ा उस पर एफर्ट मारना पड़ेगा, ये 2 टाइप के सवाल जब आपने अटेम्प्ट कर दिए, उसी के बाद आप रिवीजन करके इसको सेट कर दो। तीसरा डिफिकल्ट अटेम्प्ट करने से पहले ही आप रिवीजन कर लो। दैट इज अ बेटर आइडिया, बट अगेन अप टू यू, राइट। So everyone, thank you so much, right? This is all the mistakes that I had from our side. Definitely if you feel that there are other mistakes that you have committed that we couldn't, we haven't covered over here, make sure, right? Make sure that you mention them in the comments. I will reply back how to avoid them. This will be helpful for all the other students as well. Make sure you share this video if you liked all of these things and if it was helpful to you in any way. किसी भी तरीके से अगर आपकी मदद हुई है, definitely like का बटन दबाओ, राइट। और अपने कमेंट्स डेफिनेटली छोड़ना, हमें जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है और वेदांतु ने कैसे आपकी मदद करी आपके सपनों को अचीव करने में, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड टेक केयर।